Yes, this video is for relations and function, your chapter number 2 from your NCERT. I am discussing the value of the functions, ki how to take the values of the function. This topic is very important for 11th as well as 12th class point of view. If I take question number 1, ki f of x is equal to 3x raised to power 4 minus 5x square plus 9. The topic is find the value of f of x minus 1. The target in this case is replace x by x minus 1. If you replace x by x minus 1 and simplify, you may get the value of this and plus 9. Now simplification is x raised to power 4 minus 4x cube plus 6x square minus 4x plus 1 plus 5 times of x square minus 2x plus 1 plus 9. If you collect all the terms, this is 3x4, this is 12x cube, this is 23x square, because 6 3 is 18 plus 5. So minus 12 or minus 10, that is minus 22x, and 9 plus 3 is this is 3, this is 9 12, or this is 5, that is 70. So this is your question number 1. It means this is a very simple steps that you have to replace x by x minus 1. Rest of the questions will automatically comes out. Next questions. Sorry, this is the minus point, and if this is minus, little bit change in these terms, minus 12 minus 5, now plus 18 minus 5 is plus 13x square. In place this is minus 12 and plus 10, that is minus 2x and plus 7. This is the final answer. Second questions, fx is equal to x plus 1 by x. Prove that f of x whole cube आपने लेना है. Means you will take cubing on both sides. So this becomes a cube plus b cube plus 3 times of a into b into a plus b. a into b से x कैंसिल हो जाएगा. अगर fx ये है, अब ये भी समझाया था, तो what is fx cube? Replace x by x cube, it becomes fx cube, and this becomes 3 times of, if you replace x by 1 by x, you may write here 1 by x, because you can explain if f of x is x plus 1 by x, so what is fx cube? You can say replace x by x cube, and what is f of 1 by x? Replace x by 1 by x. हम ये डिसीजन आंसर को देख के ले लेते हैं, and this is your right hand side, and this is your second questions. Question number 3, if f of x is equal to 1 by 2x plus 1, नॉर्मली डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लिख लेते हैं 2x plus 1 should not be equal to minus 1 by 2,
and it is -3/2. बिकॉज इसमें माइनस साइंस पे हम लोग ध्यान देंगे। आपने पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ x, तो आप फर्स्ट करेंगे f ऑफ जो fx है इसमें ये वैल्यू रख देंगे 2x + 1, and in the next steps this x will be replaced by this, means 1 divided by 2 into 1 by 2x plus 1 plus 1. Rest part is your simplification. LCM ऊपर आ जाएगा 2 plus 2x plus 1. That is 2x plus 1 divided by 2x plus 3. Provided x should not be equal to -3/2. Because किसी भी क्वेश्चन में डिनोमिनेटर 0 नहीं होता। दोबारा नोट कर लीजिए कि ये स्टेटमेंट fx है, ये आपने निकालना है। पहले fx की वैल्यू पुट की, फिर आपने ये सोचा रिप्लेस दिस x बाय दिस इन दिस स्टेप। मैंने ये x की जगह ये रख दी और आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 भी एग्जैक्टली ऐसा ही है कि इफ f ऑफ x is equal to x minus 1 divided by x plus 1, यहाँ पे आप लिखेंगे x is not equal to -1 because डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। निकालना कि f of x means f of fx की वैल्यू रखेंगे x minus 1 divided by x plus 1. Now again in this step you will replace this x by this whole terms here in these steps. जो मैंने सर्कल्स में x डाले, देखिए मैं कैसे लिखता हूं। This will be written as x minus 1 divided by x plus 1 minus 1 divided by x minus 1 x plus 1 plus 1. So this is x minus 1 minus x minus 1 divided by x minus 1 plus x plus 1. So this is minus 2 divided by 2x. This is minus 1 by x, and you know that x should not be equal to 0. This you want to prove. ओके, आप क्वेश्चन नंबर 7 देखिए एग्जैक्टली सेम है। हम क्वेश्चन नंबर 7 यहीं से ले लेते हैं। इफ fx सेम स्टेप दे रखे हैं, आपने क्या निकालना, f ऑफ 1 by x. It means replace this x by 1 by x. You will get 1 by x minus 1 upon 1 by x plus 1. This becomes 1 minus x divided by 1 plus x. Minus sign outside. X minus 1 divided by x plus 1, which is minus of fx, and is your right hand side. Similarly, अगर जो 7th का आप सेकंड पार्ट करते हैं, this is f of minus 1 by x. Now you replace x, जो सर्कल में x है, minus 1 by x minus 1 minus 1 by x plus 1. So this is minus sign common, 1 plus x minus 1 plus x. x LCM लेके मैंने कैंसिल्स कर दिए। This is x plus 1 and 1 minus x. Minus sign common, x plus 1 upon x minus 1, which is minus 1 by f of x, क्योंकि ये रेसिप्रोकल में आ जाएगा। तो इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 भी करा देता हूं, वो भी इसी तरीके से है। ये क्वेश्चन नंबर 7, 8 ये सब 12th क्लास के एग्जाम में कभी कभी आए हुए हैं। मीन्स इस टाइप के क्वेश्चंस कॉमन हैं। आपने निकालना f ऑफ
एफ ऑफ एक्स, पहले आप फर्स्ट एफ एक्स की वैल्यू रखिए की पावर 1/n, फिर आप इस x को इससे रिप्लेस करेंगे, इस x में a माइनस x की जगह आप लिखेंगे a माइनस x रेज टू पावर n की पावर 1/n होल की पावर n एंड होल रेज टू पावर 1/n। मैंने आपको कहा कि ये जो x है इस टर्म से रिप्लेस होगा इस x के अंदर, इस x के अंदर ये वाली टर्म्स, तभी मैंने n ये वाला ये n जो है वो ये n है, ये 1/n यहां से है, ये x की जगह रिप्लेस होना था। सिंप्लीफाई करेंगे, इस n से ये n कैंसल, a माइनस a प्लस x की पावर n रेज टू पावर 1/n। फाइनल आंसर इज x फॉर ऑल x, क्योंकि a से a कैंसिल हो जाएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली आपने इस क्वेश्चंस में यही स्टेप्स पकड़ने हैं। अब 3 या 4 क्वेश्चंस रह गए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 काफी इंपॉर्टेंट है, और 5 और 6 दोनों एक जैसे ही क्वेश्चंस हैं। f is a real value function defined by, now f of x is given to be x minus 1 divided by x plus 1। मैं आपको कहूंगा कि एक्सप्रेस x in terms of f of x। इस लाइन का मतलब यह है कि x लेफ्ट साइड पे आना चाहिए, राइट पे एफ एक्स। इसके करने के 2 मेथड्स हैं। एक मेथड यही है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, x की टर्म कॉमन ले लें, यहां से f ऑफ x आ जाएगा, यहां से -1 क्योंकि x इधर शिफ्ट हो गया, ये -1 और ये माइनस एफ ऑफ x। इट मीन x विल बी इक्वल टू माइनस साइन कॉमन f of x plus 1 अपॉन f of x minus 1। अब माइनस को भी एडजस्ट कर सकते हैं कि 1 प्लस f of x अपॉन 1 माइनस f of x। तो इसी लाइन का मेरा मतलब था कि एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ f of x। इसको करने के 2 मेथड थे, आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो भी लगा सकते थे, पर ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाला स्टेप्स ज्यादा कॉमन है। कंपोनेंट और डिविडेंड थोड़ा पर्टिकुलर हो जाता है, बट स्टेप याद रखना है, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। क्लियर? और कंपोनेंट और डिविडेंड का स्टेप्स ये रहता है कि हम 1 प्लस एफ एक्स कर दें एंड 1 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x प्लस 1 प्लस x माइनस 1 x plus 1 minus x plus 1. So this will be 2x divided by 2. It means x will be equal to 1 plus f of x upon 1 minus f of x. इसको हम बोलते हैं using componendo and dividendo। मैंने कंपोनेंट और डिविडेंडो की सेपरेट वीडियोस भी बना रखी हैं, ठीक है। ऑल्दो फास्ट है, जल्दी होता है, क्लियर, बट क्रॉस मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स ज्यादा लगाते हैं। अब एफ एक्स आपके पास क्या गिवन में है, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। आपको निकालना है एफ ऑफ 2x। इट मीन पहले तो आप x को 2x से रिप्लेस करो,
इट बिकम्स 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1। फिर इन प्लेस ऑफ x अब आप f ऑफ x वाली टर्म रखो जो फर्स्ट में आपने कैलकुलेट करी। अब आप सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम इज सेम, 2 प्लस 2 टाइम द एफ ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 टाइम द एफ ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। तो फाइनल आंसर इज 3 टाइम द एफ ऑफ एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स प्लस 3। दिस इज योर राइट हैंड साइड, यही आपने प्रूव करना। काफी अच्छा सम्स है, नॉर्मली बच्चों ने पहले नहीं किए होते तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करने काफी मुश्किल हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, y is equal to f of x is given to be ax minus b divided by bx minus a। सेम स्टेप्स यहां लगाऊंगा। एक्सप्रेस x in terms of y मीन्स वही क्रॉस मल्टीप्लाई ही मैं ज्यादा करता हूं, बच्चों को यही स्टेप्स इजी रहता है। इसमें बड़ा सिंपल सा स्टेप्स रहता है कि आप x की टर्म एक तरफ रख लें, यहां से by माइनस a आ जाएगा, यहां से ay माइनस b। सो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू ay माइनस b अपॉन by माइनस a। अब ध्यान से देखेंगे तो f ऑफ y ही है, बिकॉज अगर आप f ऑफ x को देखें तो वो है ax माइनस b अपॉन bx माइनस a। तो f ऑफ y मीन्स रिप्लेस x बाय y, ay माइनस b अपॉन by माइनस a। क्वेश्चन नंबर 7 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 8 ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फॉर ए नॉन जीरो x मीन x इज नॉट इक्वल टू 0। आपको एक स्टेप्स दिया हुआ है कि a टाइम्स ऑफ f ऑफ x, आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 9, b टाइम्स ऑफ f ऑफ 1 बाय x प्लस माइनस 1 बाय x plus 5 is equal to 0, means I have shifted all the terms to one side. अगला स्टेप ध्यान से सुनना कि रिप्लेस x बाय 1 बाय x। अगर मैं x को 1 बाय x करूंगा तो मैं इसको f ऑफ 1 बाय x के नीचे ही रख देता हूं और इस स्टेप को लिख देता हूं b टाइम्स ऑफ f ऑफ x प्लस इसकी जगह माइनस x आ जाएगा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब जैसे आप दो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियोस बनाई हैं, तो जिसकी वैल्यू आपने पूछी है उसी को सॉल्व कर लो, f ऑफ x डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। निगलेक्ट द फर्स्ट टर्म्स, इसके कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा bx प्लस 5b, इसको माइनस साइन से करते थे, प्लस a बाय x माइनस 5a डिवाइडेड बाय कांस्टेंट टर्म को निगलेक्ट करके a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो पहले तो माइनस 5 कॉमन ले लें, तो a माइनस b इसके नीचे रख दें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस a बाय x माइनस bx डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो फाइनल आंसर इज माइनस 5 डिवाइडेड बाय a प्लस b, a बाय x माइनस bx अपॉन
दिस इज द फाइनल आंसर। मीन्स आपने ये कहना है कि मुझे इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना। और जो बच्चा जितने तरीके से सॉल्व करेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, अगर जो आपको डाउट आता है कि मैंने कैसे सॉल्व किया है, तो यू कैन सी माय सेपरेट वीडियोस, आप वहां से ये पॉइंट उठा सकते हैं। लेकिन ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है कि रिप्लेस x बाय 1 बाय x, आप उसी तरीके से इस सम को करेंगे और 1 बाय x की टर्म उसके नीचे लिखेंगे, ये टर्म उसके नीचे लिखेंगे। ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि ये किसी भी क्लास के बच्चे से पूछे जा सकते हैं। इट मे बी ऑफ 11th क्लास, इट मे बी ऑफ 12th क्लास। Now one more question, this is again very important question, question number 10। fx आपको 1 और -1 दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 में। you have to find out g of x which is given to be f of mod of x प्लस f of mod of x। देखिए हम सबसे पहले fx की स्टेटमेंट ही लिख लेते हैं। दिस इज -1 if x lies between 0 and -2 and x -1 if x lies between 0 and 2। देखिए सबसे पहले तो मैं मॉड ऑफ f ऑफ x निकालता हूं। जब मैं इसका मॉड ऑफ f ऑफ x निकालूंगा मतलब f ऑफ x हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसका नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगी। इफ x लाइज बिटवीन 0 एंड -2, लेकिन ये है x -1, तो हर बच्चे को पता है कि x -1 नेगेटिव हो जाएगा अगर जो x कहां लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में, और x -1 पॉजिटिव होगा इफ x लाई करेगा 1 और 2 के बीच में। मतलब इस पार्ट को आपको ऐसे ब्रेक करके देखना पड़ेगा। इसका मतलब यहां पे ये है कि जब x आप 0 और 1 के बीच में लेंगे, नेगेटिव का मतलब है ये 1 - x होगा क्योंकि मॉड के साथ है। और जब आप 1 to 2 के बीच में लेंगे तब इसकी वैल्यू x -1 होगी। बिकॉज हम एक मॉड x की डेफिनेशन फाइनली यूज करते हैं कि मॉड ऑफ x इज इक्वल टू x इफ x ग्रेटर देन 0 एंड -x इफ x लेस देन 0। ये मैंने f ऑफ मॉड x को ब्रेक किया, यहां से देखते हैं। मतलब फंक्शन हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब आप ये देखेंगे ये भी पॉजिटिव है क्योंकि जब आप x 0 और 1 के बीच में लेंगे तो पॉजिटिव रहेगा। ग्रेटर देन 1 लेंगे x को तब भी ये तीनों टर्म पॉजिटिव है। और f ऑफ मॉड ऑफ x क्या आएगा? इट्स वेरी सिंपल, इट विल बी रिटन एज मॉड ऑफ x -1, क्योंकि fx यही है तो कांस्टेंट टर्म है, यहां तो x है ही नहीं। इज इट क्लियर? क्योंकि जब x के ऊपर मॉड डालेंगे तो यही चीज रहेगी। अब यहां से आपके पास g ऑफ x के लिए क्या आ गया? इफ x लाइज बिटवीन -2 एंड 0, मीन जब आप x नेगेटिव लेंगे तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो -x -1, और इसकी वैल्यू क्या है? +1, क्योंकि दोनों ऐड करने हैं आपने। एक आंसर तो आपका ये आ गया। दूसरा, जब x आप 0 और 1 के बीच में लेंगे, ये क्या है? पॉजिटिव, तो x -1, और ये क्या है? +1 - x। तीसरा,
जब आप x1 और 2 के बीच में लेंगे, 1 के ऊपर साइन ऑफ इक्वालिटी कहीं भी डाल देंगे। 1 to 2 में ये भी पॉजिटिव है, x minus 1 plus x minus 1, तो फाइनल आंसर इज इट इज minus x if x lies between 0 and -2. It is 0 if x lies between and 2 times of x minus 1 if x lies between 1 and 2. So this is a very important questions. इस टाइप के क्वेश्चन हम 12th क्लास के 1 मार्क्स में देख सकते हैं। आपने सिर्फ ये देखना है कि जब मॉड पॉजिटिव लेना है तो सारी वैल्यू मेरी पॉजिटिव आनी चाहिए। तो यहां से मुझे शक x माइनस 1 को देख के क्रिएट हो रहा था कि इट विल बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, इसलिए मैंने यहाँ पे इंटरवल ब्रेक किया। ब्रेक करने का बड़ा सिंपल सा तरीका होता है, x माइनस 1 को 0 पुट कर लीजिए, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। एक बार 1 से ग्रेटर और एक बार 1 से, तो 1 से जब आप छोटा लेंगे तो नेगेटिव और 1 से बड़ा लेंगे तो पॉजिटिव है, मोड की डेफिनेशन। तो ये आपने fx को ब्रेक किया, ये इन दोनों को आपने अलग अलग इंटरवल्स में सेम डोमेन में ऐड कर दिया। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियोस। और इस टाइप के क्वेश्चन आप जितना करेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस बेटर मानी जाएगी। काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, 11th एंड 12th दोनों क्लासेस में काफी कवर होने जाएंगे। दिस इज ऑल।